today we are going to begin with the lesson number 4, that is formatting in MS Word 2010. So let's begin with this lesson. So what is formatting? Formatting involves organizing text in a specific manner on a page. इसमें आप अपने text को organize कर लेते हो specific manner में अपने पेज पे. As you know, Microsoft Word is an application software that enables users to customize the text to their preference. ये क्या है आपका फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको एनेबल करता है एक आपके कस्टमर को अपने कस्टमाइज करने के लिए अपने टेक्स्ट को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली. सो it provides user-friendly options like fonts to color, to borders, to outline and many more. ये बहुत सारे user-friendly options provide करता है colors से related to border करने के लिए और outline करने के लिए अपने text को and many more. So in this chapter we will discuss the various formatting possibilities within a document using MS Word 2010. तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे, जो हम कैसे formatting करते हैं अपने Windows 10 को अपने Microsoft Word Word 2010 को use करके. Now format printer कैसे यूज करते हैं? The format painter. So the format painter copies the character formatting like bolding, font color और italic and paragraph formatting. इससे आप क्या कर सकते हो? बोल्ड कर सकते हो, कलर कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को इटैलिक में कर सकते हो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लाइक लाइन स्पेसिंग और identification of selected text so that you can quickly apply it somewhere else. जिसे आप identify कर सकते हैं, अपने quickly apply कर सकते हो. To use format painter, follow the given step. The very first step you have to follow is select the format text you want to copy. आपको format text को select करना है जिसको आपको copy करना है. On the home tab and the clipboard group, click on the format painter option. आपको format painter option पर click करना है. The cursor will change to a paintbrush icon. जो आपका cursor होगा वो paintbrush icon में change हो जाता है. Now bring the cursor to the text that you want to format. आपको अपने cursor को उस text पे लाना है जिसको आपको format करना है. Drag the paintbrush over the text. आपको drag करना है अपने paintbrush को text के ऊपर. To stop formatting, press S और click on the format painter option again. आपको formatting stop करनी है तो आपको X पे click करना होगा और format painter option को फिर से click करना होगा. Now how to clear formatting? Formatting को कैसे clear करते हैं? You can get rid of the unwanted styles, effects, fonts by using the clear formatting option. Clear formatting option से आप जो आपके unwanted text हो गया, styles हो गए, effects हो गए, fonts हो गए, उनको आप clear कर सकते हो. To clear formatting, follow the given steps. Select the text from which you want to clear the formatting. आपको पहले से text को select करना है जिससे आपको अपनी formatting को clear करना है. Then you are on the home tab in the font group. Click on the clear formatting buttons. आपको clear formatting buttons पे click करना है. Then do you know the clear formatting option will not remove highlighting from the text. ये आपकी highlighting remove नहीं करेगी आपके text से. You have to click on no color. आपको no color पे click करना है. From the text highlight color option to remove highlighting. Highlighting को remove करने के लिए आपको no color पे click करना पड़ेगा. Now subscript and superscript. So subscripts are the characters that are half the heights of standard character. ये क्या होते हैं? आपके standard character के half height के होते हैं and are written below the rest of the text और आपके rest of the text के नीचे written होते हैं. Superscripts are the characters that are half the height of a normal character. ये क्या होता है? आपके half height होता है आपकी normal character के superscripts आपकी and written above the rest of the text और text जो होता है आपके उसके ऊपर लिखे होते हैं. MS Word facilitates subscripting and superscripting the selected text. ये आपको क्या facilities provide करता है? आपको subscript कर सकते हो, superscripting कर सकते हो अपने selected text को. When you apply subscript option to the selected text, अगर आप subscript option apply करते हो अपने super text में, the selected text marginally below the normal line of the unselected text. जो आपका text कैसे appear हो जाता है? मार्जिनली मतलब बिल्कुल नीचे अपीयर हो जाता है, बिलो जो आपका अनसेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उससे छोटा हो जाता है. टू यूज सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट स्टेप you have to follow is you have to type on
You have to type x1 and select x1. आपको टाइप करना पड़ेगा x1 पे और select करना पड़ेगा x1 पे. Then select करना पड़ेगा आपको subscript button in the font group of the home tab over here. Then notice that it will appear below the normal line. आप notice करोगे वो appear हो जाएगा आपकी normal line से नीचे like this. Now when you apply superscript जब आप apply करते हो superscript ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड, द टेक्स्ट अपीयर अबव द नॉर्मल लाइन. जो टेक्स्ट होगा आपकी नॉर्मल लाइन के अबव अपीयर हो जाएगा लाइक दिस. अनसिलेक्टेड टेक्स्ट है टू यूज सबस्क्रिप्ट ऑप्शन. अगर आपको अगर सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यूज करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज टाइप x2 एंड सेलेक्ट 2. आपको x2 पे टाइप करना है, सेलेक्ट करना है 2. देन क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब. आपको क्लिक करना है आपको सुपरस्क्रिप्ट बटन जो आपका फॉन्ट ग्रुप में आपके होम टैब के. देन यू कैन नोटिस दैट 2 विल अपीयर अबव द नॉर्मल लाइन. आप नोटिस करो कि जो 2 है आपकी नॉर्मल लाइन के ऊपर अपीयर हो जाएगा, वो है वो नीचे अपीयर होगा. नाउ फाइंड एंड रिप्लेस कमांड. So find commands enable you to locate specific text in your document. ये जो होता है आपके specific text को find कर सकते हो अपने document से. To use this command, follow the given step. The very first step you have to follow is click on the home tab. आपको home tab पे click करना है, then click करना है आपको find options पे in the editing group. Then search box appear हो जाएगा आपके सामने अपनी left hand side of window पे. Alternately you can see using आप control plus F की को भी press करके search कर सकते हो. Enter the word you want to select search on the box. आपको words enter करना है जिसको आपको search करना है अपने box में enter करना है उसको. MS Word searches the text. MS Word जो होगा आपके text को search कर देगा and display कर देगा result by highlighting the text in the document. You can click on the close X button to clear the search. आप close X button पे भी click कर सकते हो clear करने के लिए search को. You can use further options while searching for a word. आप further options पे भी click कर सकते हो word को search करने के लिए. Beside the search box, click on the down arrow and then click on the more option. आपको down arrow पे click करना है, फिर more option पे click करना है. एक dialog box open हो जाएगा. You can select various options like match case. आप बहुत सारे options select कर सकते हो, जैसे match case हो गया, perform sensitive search. Replace command enables you to find the text. इससे आप क्या कर सकते हो, अपने text को find कर सकते हो, replace कर सकते हो another text में. To replace the text with another text, follow the given step. First step क्या है आपका, click करना है आपको home tab पे, then select करना है अपने replace option को. Then over here find and replace dialog box appear हो जाएगा आपके सामने. ये आपको अपना text type करना है that you want to find and the text you want to replace that text within the find what and replace आपको replace box में apply करना है respectively. मतलब आपको सपोज प्रोसीजर की जगह आपको मेथड्स डालना है तो आपका मेथड आ जाएगा वहाँ पे. एंड फिर डायलॉग बॉक्स आपको डन करके आपका रिप्लेस हो जाएगा. फिर आपको क्लिक करना है आपको रिप्लेस बटन पे टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट. आप रिप्लेस बटन पे क्लिक कर दोगे आपका टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा न्यू टेक्स्ट के साथ. Now you can also click on replace all buttons. आप replace all buttons पे भी click कर सकते हो and replace all found word in your document at once. और एक बार में find कर लेगा जितने भी words आपके वो same आपके document में. You can also replace word by clicking on find next button. आप find next button पे भी click करके फिर search कर सकते हो and replace button one after another. When the replacing is done, click on the close button. जब आपकी replacing हो जाए आपको close button पे click करना है. Page formatting. So header and footer. Header is the top margin of the page and footer is the bottom margin of the page. जो header होता है आपकी top margin होता है आपके पेज का और footer होता है आपका bottom margin होता है आपके पेज का. Header and footers can include text. इसमें क्या क्या include होता है आपका text होता है जो support that need to appear in the fixed form on all pages. जो एक fixed form में appear होता है आपके सारे pages पे. You can include the title of your document. आप title of the document को include कर सकते हो, chapter heading और date, header and page number और author's name and footer. To add header in your document, follow the given step. First step क्या है आपको click करना है आपको insert tab में then go to header and footer group. आपको header और footer group में जाना है, फिर आपको click करना है आपके header button पे. Then select the edit header option. आपको edit header option पे click करना है. From the built-in drop down menu appear हो जाएगा और dotted line name header. जो एक dotted line है आपकी header वो appear हो जाएगी टॉप ऑफ द पेज पे. डिजाइन टैब अपीयर इन द टॉप ऑफ द रिबन. जो एक डिजाइन टैब अपीयर हो जाएगा फिर रिबन के टॉप में. नाउ टू ऐड फुटर, अगर आपको फुटर ऐड करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट. आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फुटर. आप फुटर बटन पे क्लिक करोगे देन सेलेक्ट करना है आपको जो भी आपको एडिट करना है फुटर ऑप्शन अपने बिल्ड इन ग्रुप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से. एंड डिजाइन टैब अपीयर, आपको एक डिजाइन टैब अपीयर हो जाएगा वेयर ऑन द टॉप ऑफ द रिबन. So a dotted line name वो footer will appear, वो आपके bottom में appear हो जाएगी. आपके bottom of the page में एक dotted line, यहाँ पे आप अपना text type कर सकते हो.
डिजाइन टैब कैन फर्दर टू बी यूज टू ऐड पेज नंबर, डिजाइन टैब को यूज कर सकते हो फर्दर ऐड करने के लिए पेज नंबर्स को, डेट एंड टाइम को एंड वेरियस अदर ऑप्शंस के लिए। व्हेन यू वांट टू क्लोज द हेडर एंड फुटर टूल, जब आपको क्लोज करना होता है हेडर और फुटर टूल, सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लोज हेडर ऑप्शन पे एंड फुटर ऑप्शन पे बटन इन द डिजाइन टैब, जो डिजाइन टैब में अवेलेबल है। नाउ डू यू नो इफ यू प्रेस टैब की, अगर आप टैब की को प्रेस करोगे जो कर्सर होगा वो मूव करेगा आपके सेंटर ऑफ द लाइन इन द हेडर एंड फुटर। इफ यू प्रेस इट ट्वाइस, जब अगर आप उसको 2 बार प्रेस करोगे द इंसर्शन पॉइंट जम्प्स टू द राइट साइड ऑफ द हेडर एंड फुटर, जो इंसर्शन पॉइंट है वो राइट साइड में जंप कर जाएगा। नाउ इंसर्टिंग कॉलम्स, कॉलम ब्रेक, so an effective way to make a page more presentable and readable is to arrange the text in column। आपको अरेंज करना पड़ता है अपने टेक्स्ट को अपने कॉलम्स में। by arranging text in column more text can be adjusted, आप और एक टेक्स्ट भी एडजस्ट कर सकते हो on a single page। we use page layout tab for this purpose, आप पेज लेआउट टैब्स को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। तो इंसर्ट अ कॉलम, फॉलो द गिवन स्टेप, आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या आपको सिलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को, देन क्लिक करना है आपको कॉलम ऑप्शंस में प्रेजेंट है जो आपके पेज सेटअप ग्रुप में पेज लेआउट टैब में। देन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आया है, सेलेक्ट करना है अपने नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी इंसर्टेड, कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। नाउ मोर कॉलम्स, मोर कॉलम ऑप्शन कैन बी यूज टू फर्दर कस्टमाइज द कॉलम, आगे और इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो फर्दर कस्टमाइज करने के लिए अपने ऑप्शंस को इन MS वर्ल्ड। The text flows from one column to another automatically, you can add column break, आप column break भी ऐड कर सकते हो to stop the flowing of text, जिससे आपका जो फ्लो है आपके टेक्स्ट का वो स्टॉप हो जाए from one column to another and then start afresh from the next column, फिर आपका एक जो फ्रेश है वो नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा टेक्स्ट आपका। to use column breaks follow the given step, फर्स्ट स्टेप क्या आपको क्लिक करना है अपने पेज लेआउट में टैब में एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्रेक ड्रॉप डाउन एरो, ब्रेक ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है from the in the page setup group। now you have to click on the insert places to add column, आपको insert places पे क्लिक करना है, add columns में sorry you have to click on the desired place, आपको desired place पे क्लिक करना है to add the column, की आपको कहाँ पे ऐड करना है अपने कॉलम को, उस desired place पे आपको ऐड क्लिक करना है। then you have to select the column option, आपको कॉलम ऑप्शंस को select करना है from the drop down menu over here। now the text will move to the next column, जो आपका टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट कॉलम में मूव कर जाएगा। Now let's talk about tabs. Tabs are used to align text in a paragraph, ये आपके टेक्स्ट का जो होता है आपके अलाइन करता है आपके टेक्स्ट को पैराग्राफ्स में। when tab key is pressed once the cursor moves the 5 spaces, जब आप टैब की को प्रेस करोगे आपका कर्सर 5 स्पेसेस आगे मूव करेगा और हाफ इंच बाय डिफॉल्ट। यू कैन चेंज बाय टैब सेटिंग लाइक टैब स्टॉप, आप टैब सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो टैब स्टॉप पे क्लिक करके अलाइनमेंट्स पे एंड लीडर एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। टू यूज अ टैब फॉलो द गिवन स्टेप, अगर आपको टैब को यूज करना है आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को एट द राइट साइड ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप, देन क्लिक करना है आपको टैब बटन्स पे। नाउ व्हेन यू प्रेस द टैब की, जब आप प्रेस करोगे टैब की को द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट पोजीशन वेयर यू हैव टू सेट द टैब स्टॉप, आपका जो कर्सर होगा नेक्स्ट जगह पे नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा जहाँ पे आपको वेयर यू हैव टू सेट, जहाँ आपको टैब स्टॉप को सेट करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू टाइप द मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट टाइप करना पड़ेगा अपने टैब स्टॉप पोजीशन पे। द टैब स्टॉप ऑप्शन इन द टैब डायलॉग बॉक्स सेट्स द पोजीशन ऑफ द टैब, ये आपकी पोजीशन सेट कर देगा आपकी टैब की। एंड द टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट अलाइन, जो आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा फ्रॉम हेयर सेलेक्ट व्हेन यू विल सेलेक्ट द अलाइनमेंट्स। सो द टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट अलाइन, द राइट अलाइन, वो आप राइट भी कर सकते हो लेफ्ट भी कर सकते हो, डेसिमल सेंटर बार कुछ भी कर सकते हो, बार अलाइन भी कर सकते हो बाय यूजिंग अलाइनमेंट ऑप्शंस। द लीडर ऑप्शन, जो आपका लीडर ऑप्शन है विल इंसर्ट डैश, जो है वो इंसर्ट कर देगा डैश आपके उस डैश और डॉट्स इन द प्लेस ऑफ स्पेस, डैश या डॉट्स हो जाएंगे आपके स्पेस की जगह पे व्हेन टैब की प्रेस, जब आप टैब की को प्रेस कर दोगे देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन, इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन डिफाइंस द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स द टेक्स्ट, ये डिफाइन करता है डिस्टेंस जो सेपरेट करता है आपके टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट मार्जिन्स में ऑफ पैराग्राफ। इट मेक्स द टेक्स्ट मोर ऑर्डरली, आपके टेक्स्ट को ज्यादा ऑर्डरली कर देता है। Follow the given step to use indentation option. Click anywhere on the paragraph you want to indent left. आपको कहीं भी क्लिक करना है पैराग्राफ पे जहाँ आपको आइडेंट करना है लेफ्ट। क्लिक ऑन इंक्रीज इंडेंट बटन, आपको इंक्रीज इंडेंट बटन पे क्लिक करना है ऑन द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब।
नाउ यू कैन यूज दिस मल्टीपल टाइम्स एज रिक्वायर्ड, इस ऑप्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड हो. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द डिक्रीज इंडेंट बटन टू रिमूव द इंडेंटेशन. अगर आपको रिमूव करनी है इंडेंटेशन, आपको किस पे क्लिक करना है, डिक्रीज इंडेंट बटन पे क्लिक करना है. Now, do you know the paragraph shifts half inch to the left when increase indent option is clicked once. अगर आप increase indent option को एक बार क्लिक करोगे, जो आपका पैराग्राफ है वो हाफ इंच लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है ओवर हियर, लाइक फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट. नाउ पैराग्राफ स्पेसिंग. पैराग्राफ स्पेसिंग मीन्स स्पेसेस बिटवीन ईच पैराग्राफ. इसका मतलब होता है कि कितना स्पेस है आपके हर पैराग्राफ के बीच में. MS Word enables you to change paragraph spacing according to your requirement. अब अपनी requirement के according paragraph spacing को change कर सकते हो. To use this option, follow the given step. First, you have to select the desired paragraph. आपको select करना अपने desired paragraph पे, then click करना है आपको paragraph dialog box में over here and launcher and the paragraph group in the home tab. वो paragraph group जो है आपके home tab में dialog box will appear. जो आपका dialog box है वो appear हो जाएगा. Then select करना है आपको indents and spacing tabs में. Then you have to select the spacing to edit before and after the paragraph. को spacing select करनी है over here, जो आपको paragraph से पहले और बाद में डालनी है. After the paragraph में the spacing option, then you have to click on OK. आप OK पे क्लिक करोगे. Setting properties of a page. कैसे सेट करते हैं प्रॉपर्टीज पेज की? मार्जिन इज द एरिया बिटवीन टेक्स्ट एंड एजेस ऑफ द पेज. ये एक एरिया होता है आपका टेक्स्ट और एजेस के बीच में पेज पे. MS Word allows you to change the margins. MS Word आपको अलाउ करता है चेंज करने के लिए मार्जिन ऑफ पेज फ्रॉम ऑल साइड्स. टॉप बॉटम हो गई, लेफ्ट राइट हो गई. बाय डिफॉल्ट द मार्जिन्स आर सेट टू 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड. जो मार्जिन्स होगी 1 इंच पे सेट हो जाएगी सारी साइड से, 4 साइड से. सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स ऑन योर डॉक्यूमेंट. फॉलो द गिवन स्टेप. आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना है. क्लिक करना है आपको प्रिंट लेआउट ऑप्शंस इन द डॉक्यूमेंट व्यूज ग्रुप ऑफ द व्यू टैब. देन पॉइंट द कर्सर ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर. आपको पॉइंट करना अपना कर्सर हॉरिजॉन्टल रूलर पे. द कर्सर चेंज हो जाएगा आपका डबल हेडेड एरोज में. ड्रैग द मार्जिन और बाउंड्री टू चेंज द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. आपको ड्रैग करना है मार्जिन बाउंड्री चेंज करने के लिए लेफ्ट और राइट मार्जिन में. Now, in some ways to change the top and bottom margins. अगर आपको top and bottom margins drag करनी है, change करनी है, drag करना है अपने pointer को आपको vertical rulers पे. to specify the exact measurement. अगर आपको exact measurements को specify करना है अपनी margins के, आपको given steps को follow करना है. Margin settings can also be changed according to users requirement. वो user के requirement के according change हो जाती है margin settings. क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब. आपको पेज लेआउट टैब पे क्लिक करना है. देन क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन और ऑन पेज सेटअप ग्रुप. आपको क्लिक करना है मार्जिन ऑप्शन पे. पेज सेटअप ग्रुप में इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मार्जिन साइजेस. ये डिस्प्ले करेगा आपकी मार्जिन साइजेस की लिस्ट को. देन क्लिक करना है आपको प्री डिफाइंड मार्जिन साइज फ्रॉम द लिस्ट. प्री डिफाइंड मार्जिन साइज जो है आपको उस पर क्लिक करना है. Now to change the margin setting, follow the given step. अगर आपको margin setting change करनी है आपको कुछ steps को follow करना है. Follow the first 2 steps as discussed. जब आपको first 2 steps को follow करना है, क्लिक करना है पेज लेआउट पे एंड आपको क्लिक करना है मार्जिन ऑप्शन पे, पेज सेटअप पे जाना है. Then now select the custom और मार्जिन ऑप्शन. आपको किसको सेलेक्ट करना है? कस्टम मार्जिन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो आपके पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में अपीयर होंगे. ऑन द मार्जिन डेप्थ सेट करना है आपको मार्जिन फॉर टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पेज. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. आपको ओके पे क्लिक कर देना है. पेपर ओरिएंटेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर ओरिएंटेशन. 2 तरीके के पेपर ओरिएंटेशन होते हैं, portrait and landscape. Portrait orientation means that you will see the page in a vertical order. इसका मतलब होता है कि आपको पेज आपका vertical order में दिखेगा. while in landscape orientation the page is displayed in a horizontal order. इसमें क्या होता है आपका लैंडस्केप में आपको पेज आपका हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में होता है. द पेपर ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इज सेट टू पोर्ट्रेट. वो डिफॉल्ट से पोर्ट्रेट पे सेट होता है. टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन आपको गिवन स्टेप्स को फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको क्लिक करना है अपने पेज लेआउट टैब पे. देन क्लिक करना है आपको ओरिएंटेशन ऑप्शंस ऑन द पेज सेटअप ग्रुप. देन क्लिक करना है आपको लेयर लैंडस्केप ऑप्शंस पे. नाउ पेपर साइज. पेपर साइज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटर यूज विद कंप्यूटर. किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप प्रिंटर यूज करें अपने कंप्यूटर के साथ. टू चेंज द पेपर साइज आपको फॉलो करना है गिवन स्टेप्स को. फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है साइज ड्रॉप डाउन एरो ऑन द पेज सेटअप ग्रुप इन द पेज लेआउट टैब. देन आपको सिलेक्ट करना है अपने पेपर साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट.
You can also specify the paper size by clicking on the more of paper size option. आप specify भी कर सकते हो paper size, अगर आप click करोगे more paper size option पे, in this dialog box select करना है आपको paper size of in the paper tab. You can see the changes, आपको यहाँ पे changes दिख जाएंगे in the preview section and the click करना है आपको किस पे, OK पे. Before printing a document, you can always see how it will appear. आप प्रिंट करने से पहले आप हमेशा देख सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसा दिखता है ऑन द पेपर, कि कैसा दिखेगा पेपर पे, किस पे क्लिक करें, प्रीव्यूइंग इट पे क्लिक करके. प्रीव्यूइंग रिफर्स टू कस्टमाइजिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटर. क्या है, किससे रेफर करता है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट प्रिंटर के लिए. नाउ टू प्रीव्यू अ डॉक्यूमेंट फॉलो करना है आपको गिवन स्टेप्स को, क्लिक करना है आपको प्रिंट ऑप्शंस पे फाइल टैब में. देन आप स्क्रीन विद अ नंबर ऑफ प्रिंट ऑप्शंस विल अपीयर. जो एक स्क्रीन होगी प्रिंट ऑप्शंस के साथ वो अपीयर हो जाएगी like this. It will appear on your screen and with a preview on the document to be printed on the right hand. जो preview होगा वो आपके right hand पे आ जाएगा आपकी screen पे. Then to browse through your document you can use arrows. अगर आपको browse करना है अपने document को, आप arrows use कर सकते हो. Buttons that is at the bottom of the document, जो आपके document के bottom में होता है. zoom करने के लिए आप देख सकते हो. zoom slider is magnify the preview. जो zoom slider होता है इससे आप magnify कर सकते हो अपने preview को, which is selected at the which is present at the bottom right corner. जो आपकी present है आपके bottom right corner में zoom slider. Now MS Word gives the facility to print multiple copies at a time. ये आपको facility provide करता है जिससे आप multiple copies print कर सकते हो एक time पे. There are two options for this collated and uncollated in the setting option. दो option होते हैं. Like collated option will print the whole document. जो collated option होगा वो सारे document को print कर देता है and then printed copies one by one. और आपकी copies को print करता है one by one. Uncollated option will print the document page wise. ये आपके uncollated जो होगा page wise document को print करता है. It will print the copies first page. पहले आपकी copies को print करेगा first page, then copies to the second page and so on. Printing a document. So to get a document in print form, you have to follow the given step. First step क्या है आपको file tab पे click करना है, then select करना है अपने print options को, then you have to select the printer. आपको select करना है printer, जो भी आपको printer जिससे print निकालना है, then आपको click करना है on print पे, आपको print copies पे click करना है, print पे click करना है, then आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो आपको कितनी कॉपीज चाहिए हुआ है. देन उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग ऑप्शंस पे जाना है ओवर हेयर टू चेंज द सेटिंग एज पर एज रिक्वायर्ड. अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है, अगर नहीं करनी तो आपको डायरेक्ट प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका प्रिंट बाहर आ जाएगा. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.